तो हेलो आईटीएम यूनिवर्सिटी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है अपने आईटीएम यूनिवर्सिटी में प्री कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम। ये देखो, ये अभी अपन पहुंच गए गेट नंबर 4। ये देखो मेरे बाकी दोस्त लोग ये आगे जा रहे हैं। आ जाओ भाई, हाय कर दो। ये देखो, ये है अपना आईटीएम यूनिवर्सिटी का सितौली कैंपस। सबको दे रहा ना। ये देखो, ये इतने सब आने वाले हैं। अभी ये है 10 कॉन्वोकेशन सेरेमनी, इसमें इतने लोग आने वाले हैं। अब देख लो। तो अभी अपन जा रहे आगे। ये देखो, तो दोस्तों देख लो, आप इतने सारे लोग आए हैं प्री कॉन्वोकेशन टेंट सेरेमनी में। आप लोग देख सकते हो, पूरा सितौली कैंपस भर गया है। ये देखो। तो हेलो दोस्तों, देख लो आप, हम लोग जा रहे हैं अभी प्री कॉन्वोकेशन के लिए नाद। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इतने लोग जा रहे हैं सब लाइन से। ये देखो, मेरे साथ है दिग्विजय मेरे भाई और दिवांश पीछे। हाय कर दो भाई, मुझे हाय कर दे। ठीक है, अब मिलते हैं आगे प्रोग्राम में। तो हेलो गाइस, देख लो आप, इधर सब लोग अभी साइन कर रहे हैं। एंट्री लेने के लिए यहाँ पे साइन करना पड़ रहा है। देखो, आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस, अपन आ गए प्री कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के अंदर। और देखो, हाँ सर, हाय कर दो सर, हाय कर दो सर, व्लॉग में आओ गया। Louder! Louder! Bring your hands together. This is a historic moment for the university. A huge round of applause, everyone. Moment of great pride and privilege to extend a warm and heartfelt welcome to this esteemed gathering on the occasion of Pre-Convocation Academic Conclave at ITM University, Gwalior. This event marks yet another milestone in the pursuit of academic excellence and intellectual growth that this university has championed over the years. Today's conclave serves as an intellectual precursor to celebrate the spirit of knowledge, innovation, and achievement. It gives us immense joy to welcome an august assembly of dignitaries, academic stalwarts, visionary leaders, esteemed faculty members, and our ever curious and enthusiastic students. We're privileged to have you with us today. Please bring your hands together for Professor Dehri, everyone. And may I request our student representatives to kindly come and welcome him. A huge round of applause, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, sir. You may kindly. Internationally respected for her pioneering contribution to contemporary printmaking and fine arts. Her powerful visual storytelling and her lifelong dedication to artistic excellence have placed her amongst the most celebrated artists of modern India. Over the decades, her work has inspired not only the art fraternity, but also generations of young learners, encouraging them to see creativity as a profound expression of thought, emotion, and human strengthened, and her presence has strengthened the global presence of Indian artistry. Ladies and gentlemen, please bring your hands together for Srimati Anupam Sood. It's an honor to have you with us, ma'am. It's truly an honor. May I request our students to kindly come and welcome her. Thank you, ma'am. You may kindly take your seat.
known as the founder of Ranga Shankara, one of India's most celebrated theatre spaces, which has become a symbol of artistic freedom, discipline, and excellence. Her contribution spans powerful performances on stage, critically acclaimed roles in Indian cinema, and a lifelong commitment to creating accessible cultural spaces for artists and audiences. A recipient of Padma Shri and a National Film Award, she continues to inspire generations through her dedication to meaningful storytelling and cultural leadership. Ladies and gentlemen, please bring your hands together for Padma Shri Arundhati Nagji. I request the students, volunteers to kindly come and give her a very warm welcome. It's an honor to have you with us, ma'am. It's truly an honor. A name that certainly doesn't need an introduction. He's a towering figure in the world of sports, a forward of extraordinary speed, skill, and precision. He represented India in 4 Olympics, 4 World Cups, 4 Asian Games, and 4 Champions Trophy tournaments. A feat achieved by very few athletes in the world. His leadership on the field, his relentless passion, and his ability to carry the spirit of India on his shoulders has made him one of the most admired sportsperson of his time. He's celebrated for his fierce determination, his commitment to the sport, and his mentorship of young players who can continue to look up to him as a role model. Today, his contributions extend far beyond his career as a player. He stands as a symbol of sportsmanship. Please bring your hands together, ladies and gentlemen, for Sri Dhanraj Pillai. May I request the students to kindly come and give him a very warm welcome. Thank you, sir. You may kindly take your seat. It is truly an honor to. He is widely respected as one of India's finest senior advocates and thought leaders in law. His illustrious career spans decades of exceptional service to the Republic of India, including his role as the Solicitor General of India and his contributions to several landmark commissions, committees, and constitutional matters. His work has shaped legal discourse on constitutional law, human rights, education, institutional ethics, and judicial reforms. It's truly an honor to have Sri Gopal Subramaniam gracing the dais this morning. Please bring your hands together, everyone, and give him a huge round of applause. May I request our students to kindly come and welcome him. Thank you, sir. You may kindly take your seat. This absolutely resplendent dais this morning. For our dignitaries, for our guests, with deep reverence and great honor, I invite the visionary architect of ITM University's academic excellence to deliver the opening remarks and welcome address. Sir, your leadership, wisdom, and far-reaching vision continue to inspire every stride this institution takes. As we commence the pre-academic conclave, it is a privilege to begin under your guidance. I humbly request Honorable Pro-Chancellor Dr. Daulat Singh Chauhan to kindly come and address the audience this morning. A huge round of applause, everyone. Thank you, sir. परम सम्माननीय इस संस्था के संस्थापक श्री रमाशंकर सिंह जी, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के माननीय अध्यक्ष, विद्वान, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर खेम सिंह जी, हमारी संस्कृति पहचान की दूत, देश की ख्यातनाम रंगकर्मी और अदाकारा श्रीमती अरुंधति नाग जी, अद्भुत कलाकार, ख्यातिनाम शिक्षक अनुपम सूद जी, इस देश के जाने माने वरिष्ठ वकील
भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, कला मर्मज्ञ एवं प्रमुख भारतीय कला संग्रहकर्ता शिव नादार फाउंडेशन की ट्रस्टी श्रीमती किरण नादार जी, जो कुछ समय में हमारे बीच उपस्थित होंगी, माननीय कुलाधिपति श्रीमती रुचि सिंह जी, सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर योगेश उपाध्याय जी, कुल सचिव डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, प्रोफेसर रविचंद्रन जी, हमारे बीच इस देश में हॉकी की पहचान धनराज पिल्ले जी, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और सबसे महत्वपूर्ण प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि ये कार्यक्रम लगभग 10 मिनट देरी से शुरू हो रहा है। मैं आशा करता हूं आप सब इसके लिए हमें माफ़ करेंगे। आज जब इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूं, तो ये आपको बताना चाहता हूं, जो छात्र पहली बार इस कार्यक्रम को में उपस्थित हैं, उनको बताना चाहता हूं कि यह हमारे विश्वविद्यालय का एक वार्षिक आयोजन ही नहीं है। यह वह अवसर है जब हम अपने समय के श्रेष्ठतम लोगों से सीधे संवाद कर पाते हैं। हम ऐसे लोगों की बातें सुन पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, निर्णय, असफलताओं, सफलताओं और दृष्टि से हजारों लाखों लोगों का जीवन प्रभावित किया है। इनमें से कई लोगों को पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या अमिट छाप छात्र मन पर और लोगों के मन पर छोड़ी है। मैं बिना किसी अतिशयोक्ति से कह सकता हूं कि ये हमारे विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है। हमारे संस्थापक रमाशंकर सिंह जी ने इस कार्यक्रम को बहुत साल पहले विचार यज्ञ की संज्ञा दी थी। मैं लगातार इतने वर्षों से सोच रहा हूं कि इस कार्यक्रम का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो मैं हूं भी बहुत अल्प समझ वाला, लेकिन बहुत लोगों से बात करने के बाद भी सच मानिए तो इससे सुंदर और इससे संदर्भवान नाम इस कार्यक्रम के लिए नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि यह वास्तव में विचारों का यज्ञ है। ज्ञान, अनुभव, संघर्ष और दृष्टि का एक सामूहिक अनुष्ठान है। और आज हम उन महानुभवों को सुनेंगे जिनकी एक एक बात, एक एक अनुभव, एक एक दृष्टिकोण हमारे वर्षों के अध्ययन से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छात्र अगर इसको ढंग से सुनेंगे तो ये मैं दावे से कह रहा हूं कि ये जो आज यहाँ अगले 2-2.5 घंटे में बात होगी, ये आपको किसी किताब में नहीं मिल सकती है, ना आपको किसी औपचारिक कोर्स जिसके लिए आप डिग्री पाते हैं उस कोर्स में ये बातें आपको मिलेगी। इसीलिए आज मैं अपनी बात इसी बात से शुरू करना चाहता हूं कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हम कल्पना क्यों करते हैं, और यह विचार और कल्पना की परंपरा इतनी आवश्यक क्यों है। कोई तो कारण होगा कि हम लोग इस तरह, ये अकेला विश्वविद्यालय है जहां ये कार्यक्रम होता है, तो कोई इसके पीछे कारण रहा होगा। तो जब इसके बारे में मैं सोचता हूं तो ये 3 खास सवाल मेरे मन में आते हैं। इन प्रश्नों पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विचार, चिंतन और कल्पना धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है ये कि हम उन विषयों पर अनौपचारिक चर्चा करें जो अमूमन आपकी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में नहीं होती। मुझे लगता है इन प्रश्नों को समझने से पहले हमें ये संक्षिप्त में समझना पड़ेगा कि वर्तमान में जो इंसान हम हैं उसकी इस संसार में यात्रा क्या हुई। ये विचार पहली बार, ये कल्पना करने की शक्ति इंसान को पहली बार कब मिली। तो अगर जिस पृथ्वी पे हम हैं, जिस पे ये नाद मुक्ताकाश मंच बना हुआ है, यह आज से लगभग, वर्तमान से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बनी। मतलब लगभग
450 करोड़ साल पहले बनी। इस पृथ्वी पे जीवन लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले प्रकट हुआ और इस ग्रह पे इतने समय में लगभग 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ प्रजातियां हुई। हम इन 1 लाख करोड़ प्रजातियों में से सिर्फ एक हैं और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कह रहे हैं उसको हम सिंगुलैरिटी कह रहे हैं और सिंगुलैरिटी का मतलब होता है विलक्षणता। मतलब हम और कोई और एक चीज एक होने वाली है। अगर रे कुर्ज़वेल की किताब से सही समझूं, जिस किताब का नाम है सिंगुलैरिटी इज नियरर, तो शायद हम मशीन होने के बहुत करीब हैं। उनके अनुमान से 2045 तक ह्यूमंस विल मर्ज इनटू एआई, ह्यूमंस विल मर्ज इनटू मशीन। हमारे हाथ में जो ये यंत्र है, जिसको मैं मजाक में षड्यंत्र भी कहता हूं, तो पहले मजाक में कहता था लेकिन अब मुझे वो सच लगने लगा है, इसने हमें उस गुलामी की तरफ धकेला है जिसको हम टेक्नोलॉजिकल स्लेवरी कहते हैं। यह समय दूर नहीं है, 5 साल दूर ही है, जब आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और नियो कॉर्टेक्स में एक चिप लगा दी जाएगी और जैसे आप डेटा प्लान लेते हैं, आप सूचना के प्लान लेने लगेंगे और आप इस गलत फहमी में होंगे कि हमारे पास जितनी ज़्यादा सूचना है, जो अब हो गया है, गलत सही नहीं देखते हम, जितनी ज़्यादा सूचना है उतना ज़्यादा ज्ञान हमने प्राप्त किया है। तो सूचना और ज्ञान में एक बड़ा अंतर है, जो हमारी विचार परंपरा को जब हम भूलते जा रहे हैं तो ये अंतर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं।